প্রিয় দর্শক, এসসি এসটি সংরক্ষণের মধ্যে আরও কিছু সাব ক্লাসিফিকেশন করার জন্য গত 1 আগস্ট 2024 রায় দান করেন ভারতের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়। এই রায়ের বিরুদ্ধে সারা দেশে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে। সুপ্রিম কোর্টের এই রায় সংবিধানকে অমান্য করেছে এবং এসসি এসটি সমাজের মধ্যে ভাঙন ধরানোর চেষ্টা করছে বলে দাবি ওঠে নির্বাচিত প্রতিনিধি, সাধারণ মানুষ এবং রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে। রায় বাতিল করতে হবে বলে দাবি জানিয়ে 21 আগস্ট 2024 ভারত বন্ধের ডাক দেয় রিজার্ভেশন বাঁচাও সংঘর্ষ সমিতি। আজাদ সমাজ পার্টি, ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা, বহুজন সমাজ পার্টি এবং কংগ্রেস সহ ইন্ডিয়া জোটের বহু রাজনৈতিক দল এই বন্ধকে সমর্থন জানালে সারা দেশব্যাপী সর্বাত্মক বন্ধের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। ঘোষণা মতো সকাল থেকেই রাস্তার মোড়ে মোড়ে জমা হতে শুরু করে সমর্থকেরা। বন্ধের খবর আসতে শুরু করে মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড থেকে। ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা এই বন্ধ সমর্থন করায় ঝাড়খণ্ডে বন্ধ সর্বাত্মক হয়। রায়পুরে এই বন্ধের সঙ্গে যুক্ত হয় বিশাল আদিবাসী সমাজ। কিন্তু বিহারের চিত্রটি একটু আলাদা। সকালের দিকেই এই বন্ধকে গুড়িয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেয় বিহার সরকার। প্রদর্শনকারী আজাদ সমাজ পার্টি, বহুজন সমাজ পার্টি এবং অন্যান্য সামাজিক সংগঠনের নেতাদের উপরে ভয়ঙ্করভাবে লাঠিচার্জ করে, কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে এবং ব্যারিকেড দিয়ে আটকানোর চেষ্টা করে। প্রদর্শনকারীদের উপরে লাঠিচার্জের খবর শুনে বিহারের রাজধানী পাটনাতে জড়ো হতে শুরু করে হাজার হাজার মানুষ। তারা পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে দেয় এবং শান্তিপূর্ণভাবে রাস্তার দখল নিয়ে নেয়। এই ঘটনায় সিঁদুরে মেঘ দেখতে পায় বিজেপির নির্বাচিত দলিত নেতারা। অগত্যা তারাও বন্ধের সাথে যুক্ত হওয়াতে পুলিশের তাণ্ডব খানিকটা কমে আসে। জয় ভীম। জয় ভীম বন্ধুরা। ধানবাদ থেকে আমাদের প্রতিনিধি স্বস্তি সর্দার জানাচ্ছেন যে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের বিরোধিতা করে আজকের বন্ধে এখানে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। মানুষ দোকানপাট বন্ধ রেখেছেন। দলমত নির্বিশেষে মানুষ মোটর বাইক নিয়ে রাস্তায় বিশাল মিছিল করেছে। বন্ধের সবথেকে বেশি প্রভাব পড়েছে উত্তরপ্রদেশে। বহিন মায়াবতী এই বন্ধ সমর্থন করার জন্যে নীলা ঝান্ডা নিয়ে রাস্তায় নেমে এসেছে হাজারে হাজারে বহুজন সমাজ পার্টির কর্মীরা। গত 2018 সালে এসসি এসটি অ্যাট্রোসিটিস অ্যাক্ট লাগু করে দেবার জন্যে সারা ভারতে যে বন্ধ পালিত হয়েছিল তাতে মৃত্যু হয়েছিল 14 জনেরও বেশি সমর্থকদের। তাদের শহীদের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। তাই বহিন মায়াবতী শান্তিপূর্ণ বন্ধ পালনের জন্যে আহ্বান জানিয়েছেন। দিল্লির যন্তর মন্তরে ভাই চন্দ্রশেখর আজাদ সামলেছেন বন্ধের দায়িত্ব। তিনি জানান যে सामान्य जाति के बच्चों को दे सकते हैं, सामान्य जातियों को दे सकते हैं, तो 10% आरक्षण आप अति पिछड़ी और अति दलित जातियों को क्यों नहीं दे सकते? सरकार ये बताए। और अभी ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। आज तो संपूर्ण भारत में भारत बंद जारी है, लेकिन 11 सितंबर को जो हमने दूसरा चरण इसका बुलाया दिल्ली में, उस दिन हम सरकार को घुटने टिकवा देंगे। चैलेंज करके कहता हूँ, आज इस आंदोलन में जिस सरकार के नेतृत्व में हमारे लोगों की पीठ पर लाठियां पड़ेगी, उस सरकार की कुर्सी को पलटने का काम, तख्ता पलट करने का काम भी हम आने वाले कल में करेंगे। इस बात का भी मैं सरकार को चैलेंज देता हूँ, मेरी बात को याद रखना। मैं सरकार का विरोधी तो हूँ। जब तक सरकार जिम्मेदारी से कोई काम नहीं करेगी, हम सरकार की नीयत पे शक करते हैं, हम सरकार का भरोसा नहीं करेंगे। ये बताने का काम किया है कि समय बदल गया है। अब अगर हमारे अधिकारों पे कहीं से भी हमला होगा तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। उसी सरकार को ये बताने कि जब समाज सड़कों पे रहेगा तो उनके नेता भी बंगलों में, महलों में नहीं बैठेंगे, वो भी सड़कों पे रह के समाज का संरक्षण करेंगे। जिस तरह से पूरे देश में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग जिला मुख्यालयों पे सड़कों पे उतर के संवैधानिक तरीके से अपना ज्ञापन दे रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, बंद को सफल बना रहे हैं, ऐसे ही कार्यकर्ता के तौर पे हम दिल्ली में अपनी ड्यूटी को अदा कर रहे हैं। हम दिल्ली के जंतर मंतर पे पिछले कई घंटों से अपने आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं और ये संदेश दे रहे हैं, सारी चीजों पर नजर भी रख रहे हैं कि हम इस आंदोलन से पीछे हटने वाले अब नहीं। मैं सरकार का विरोधी तो हूँ,
मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले पार्लियामेंट में मैंने इसका ललकार कर विरोध किया और सरकार को चैलेंज किया कि सरकार अब आंखें खोल ले, अब वो दिन नहीं रहे, 2 अप्रैल 2018 दोहराने का मौका न दे। और फिर सरकार ने अपनी बात रखते हुए कहा कि हम इसको नहीं कर रहे हैं, उसको नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब तक सरकार जिम्मेदारी से कोई काम नहीं करेगी, हम सरकार की नीयत पे शक करते हैं, हम सरकार का भरोसा नहीं करेंगे। क्योंकि हमने देखा है आरक्षण पे सिर्फ ये हमला नहीं, निजीकरण के द्वारा, लेटरल एंट्री के द्वारा, जैसा अभी आपने 45 का कर दिया था, वो तो हमने जबरदस्त आवाज उठाई तो आपको वापस लेना पड़ा। फिर ठेकेदारी के जरिए, संविदा के जरिए, आउटसोर्सिंग के जरिए जिस तरह से आपने सरकारी नौकरियों को खत्म करके आरक्षण की धज्जियां उड़ाने का काम किया, ये किससे छिपा हुआ नहीं है। और जिस तरह से आपकी सरकारें निजीकरण को बढ़ावा दे रही हैं, पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर को बढ़ावा दे रही हैं, सरकारी स्कूलों को बंद कर रही हैं, नौकरियों को खत्म करें, 69 शिक्षक भर्ती में जिस तरह आपने घोटाले किए और फिर तमाम तरह से आपकी लंबे समय से नीति, आपकी आइडियोलॉजी हमने देखी। हम इस सरकार के ऊपर, इनकी नीतियों पर भरोसा नहीं करते, इसलिए हमें इस सरकार की नीयत पे खोट है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, चलाने वाले हाथ अच्छे नहीं होंगे, उनकी नीयत अच्छी नहीं होगी, उनकी नीति अच्छी नहीं होगी तो अंत संविधान बुरा साबित होगा। इसलिए आज हम ये नीला झंडा लेके आते हैं कि हम किसी भी कीमत पे सरकार के हथकंडों को, सरकार की बुरी मंशा को, सरकार के षड्यंत्रों को कामयाब नहीं होने देंगे। एक और बात, अगर सरकार कहती है कि बंटवारे की बात, वो कुछ देने की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं चंद्रशेखर आजाद, बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम साहब, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि जी के मिशन का सिपाही, मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं, ये हमारे भाइयों की बात है। हम अपने भाइयों से इस आंदोलन के बाद टेबल टॉक करेंगे, उनकी समस्या को सुनेंगे, अपनी बात भी रखेंगे और मिलकर अपनी समस्या का हल निकालेंगे। हम बंदर बाट नहीं होने देंगे। हम सरकार को अपने अधिकारों पे राजनीतिक रूप से फायदा लेने के लिए अपने लोगों को लड़ने नहीं देंगे। हम अपने भाईचारा बना के रखेंगे। और फिर मैं कह रहा हूं, मैंने 1.5 साल पहले मांग उठाई थी कि जो जिन जातियों को अवसर नहीं मिले, जब 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण आप सामान्य जाति के बच्चों को दे सकते हैं, सामान्य जातियों को दे सकते हैं, तो 10% आरक्षण आप अति पिछड़ी और अति दलित जातियों को क्यों नहीं दे सकते? सरकार ये बताओ। लेकिन सरकार ने की मंशा ही कभी ये नहीं थी। सरकार की मंशा तो जातिगत आरक्षण को खत्म करने की है। सरकार की मंशा तो जातिगत आरक्षण को खत्म करके, हमारी संवैधानिक ताकत खत्म करके, आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करके अपने लोगों को फायदा देने की है। सरकार की मंशा तो लेटर एंट्री करके हमारे लोगों को सिस्टम से निकाल के अपनी विचारधारा के लोगों को सिस्टम में बिठा के, और पॉलिसी मेकिंग में जब उनके लोग बैठे होंगे तो हमारे लिए पॉलिसियां नहीं बनेंगी। इसलिए हमें सरकार की नीयत पे खोट है। हम अपने भाइयों के साथ खड़े हैं। अगर हमारे भाइयों को हिस्सा देने की बात आएगी तो हम अपना हिस्सा भी उनको दे देंगे, लेकिन सरकार की नीयत के खोट को और सरकार की प्रणालियों को हम लोग लागू नहीं होने देंगे। जब पार्लियामेंट का सेशन चलेगा, आप मेरी बात को याद रखना, हम सरकार को घुटने टिकवाने के लिए एक इतनी बड़ा जन समर्थन यहाँ दिल्ली में जुटाएंगे कि सरकार की आंखें खुल जाएंगी, नींद खुल जाएगी, और हम अपने आरक्षण पे, अब अपने अधिकारों पर किसी भी तरह की जो है हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपनी भाईचारे को बना के रखेंगे, अपनी एकता को बना के रखेंगे और दुश्मन की चालों को भी कामयाब नहीं होने देंगे। मैंने सरकारों को ये भी कहा है, जिस तरह लाठियां बिहार में हमारे लोगों पे मार रहे हो, हमारे लोगों को पीटने के चक्कर में एसडीएम को ही पुलिस ने पीट दिया। ये जो लाठी मारने की प्रथा है, इसका भी सूद समेत हम लोग जवाब देंगे आने वाले कल में। और आपकी लाठियों का जवाब जो है हम लोग अपने तरीके से, संवैधानिक तरीके से देंगे। और मैं चैलेंज करके कहता हूं, आज इस आंदोलन में जिस सरकार के नेतृत्व में हमारे लोगों की पीठ पर लाठियां पड़ेगी, उस सरकार की कुर्सी को पलटने का काम, तख्ता पलट करने का काम भी हम आने वाले कल में करेंगे। इस बात का भी मैं सरकार को चैलेंज देता हूं, मेरी बात को याद रखना।